Hello students, today we are going to discuss a very important topic of a higher class, and that is a flower. Flower is the most important part of angiosperm. They are a higher plants which itself divided into two class, that is dicot and monocot. Why the flower is most important part of a angiosperm? Because it is modified in very means for the special function, that is a reproduction. So you can say reproduction takes place within flower. Flower having a aesthetic value, spiritual value, religious value, and it is the most attractive part of a plant body. Here there are different parts of flower that we are going to discuss today, right? Here we are going to discuss a complete flower. What do you mean by complete flower? Complete means all four whorls of the flowers are present. What do you mean by whorls of the flowers? Outermost whorl of the flowers, that is calyx. The second one is corolla. Third one is androecium. And the fourth one, very most inner one, that is gynoecium. So if any flowers, this all four whorls means calyx, corolla, androecium and gynoeciums are present, then this flower is known as the complete flower. Today we are going to discuss a complete flower, that is hibiscus. Students, this flower is most important because hibiscus having all four whorl very well, androecium and gynoeciums are there, and we can discuss pollen grains and the carpel and pistil well in this flower. So hibiscus flower is also known as shoe flower. Let us show a beautiful diagram of hibiscus. The outermost whorl, that is a calyx. Flower का जो stalk like structure है, that is known as peduncle. Stalk of flower, you can say it is a stalk of flower. ये ऐसा हैंडल पार्ट है जिससे हम लोग फ्लावर को होल्ड कर सकते हैं. That is maybe green or brown in a color. That is maybe green, or if it is green then it is somewhat that is pliable, soft, flexible, and if it is in a brown color, that means it gives a woody structure, maybe a hard or a tough one. Here is the receptacle parts. Receptacles means receiving a part of a flowers. So the receptacles of the flowers may be of a different forms or a size, that may be of a disc shaped, cup shaped, या फिर any cavity formed structures of receptacles may be there. Here we are going to discuss about hibiscus receptacles. So that is a disc-like structure where it is having a leaf-like structure, and that is known as the sepal. That is known as the sepal. But especially if we talk about hibiscus flower, they are having a two whorl of sepal, one at the base and one at the apex. So this is known as the episepalous or epicalyx. We can also use a term epicalyx. So this is a whorl of a sepal, that is known as the calyx. Calyx के exactly नीचे भी leaf-like structure is there, and that's why it is known as the epicalyx. My dear students, now you come to know कि what is calyx. So calyx means outermost whorl of the flower. But obvious है students, अगर ये outermost है उसका मतलब है mainly उसका function ये रहेगा कि it give protection
प्रोटेक्शन। कब प्रोटेक्शन की जरूरत है? व्हेन इट इज इन बर्ड कंडीशन। मतलब फ्लावर अभी कंप्लीटली ब्लॉसम नहीं हुआ है, तो बर्ड कंडीशन में मे भी बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो उसको खाने की कोशिश करेंगे और उसको ब्लॉसम नहीं होने देंगे। सो कैलिक्स का मेन फंक्शन ये है कि जब तक वो बर्ड में से फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, until and unless ये जो है outermost calyx, its function is to give a protection. Okay my dear students, so sepal that form a whorl, whorl का नाम calyx है। calyx के नीचे भी एक पूरा whorl present है, small leaf like structure वाला, that is known as the apicalyx, that is made up of episepal. So there are outer two most whorl हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए calyx के। calyx का फंक्शन भी डिस्कस किया my dear students कि ये प्रोटेक्शन करता है बर्ड कंडीशन में इंसेक्ट से। नाउ सबसे ज्यादा फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट जो है, जो कि मे बी 5, 6 और 7 पेटल्स से बना हुआ है, आउटर मोस्ट है और अट्रैक्टिव भी है। सो दैट वर्ल का मेन फंक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, बट ऑब्वियस है वेयर इज आवर सेकेंड वर्ल, दिस इज अ कोरोला। सो द फंक्शन ऑफ कोरोला कैसा है? वो एकदम कलरफुल है, कलरफुल है, अट्रैक्टिव है। फॉर द अट्रैक्शन ऑफ हुम, तो यहाँ पे वो ह्यूमन बींग्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर हमें यहाँ पे ज्यादातर अट्रैक्शन इंसेक्ट के लिए करना है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट इज ओनली अ एजेंट फॉर पोलिनेशन। एज यू नो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर, दैट इज नोन एज पोलिनेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोरोला अट्रैक्टिव इसीलिए है कि इंसेक्ट उसको देख के अट्रैक्ट हो और पोलिनेशन का हमारा काम जो है वो फुलफिल करे। वैसे तो पेटल्स है, उनके काफ़ी सारे हम लोगों ने अलग अलग यूजेस बताए। बहुत एंशियंट टाइम से फ्लावर का ये जो अट्रैक्टिव पार्ट है, उसके बेसिस पर उसको ऑर्नामेंट के फॉर्म में, या फिर फॉर इंसेंस स्टिक के लिए, फ्रेग्रेंसेस के लिए, या फिर टू मेक अ रंगोली ऑफ अ फ्लावर्स, या फिर टू मेक मैनी फूड सप्लीमेंट्स लाइक गुलकंद वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, फॉर दैट दे आर गोइंग टू यूज। और इसके अंदर ज़्यादातर न्यूट्रिटिव वैल्यू होने के कारण ये एडिबल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स है, जिसको खाया भी जा सकता है। मैनी इंसेक्ट ऑफ देम है कि जो खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है दैट इज अ सेकेंड वर्ल ऑफ अ फ्लावर, दैट इज अ पेटल। और पेटल का पूरा वर्ल मतलब पूरा का पूरा सर्कल जो है पेटल का, दैट इज नोन एज द कोरोला। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, पेटल इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। पेटल्स है मे बी इन द फॉर्म ऑफ, क्या हो सकता है तो कि इन द फॉर्म ऑफ 4, 5, 6 मेंबर्स भी हो सकते हैं पेटल्स के। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे पेटल है वो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है। इनर मोस्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा थर्ड वॉल है, दैट इज द एंड्रोशियम। एज यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, एंड्रोशियम मतलब स्पेशली दे आर टॉकिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज लुक लाइक दिस, दिस इज अ male reproductive part of a flower, and it's look like this. They all are arranged in one group. So my dear students, androecium मतलब male reproductive system. They are made up of two parts, mainly anther and filament. So my dear students, this is anther and this is a filament. इन एंथर मेनली क्या होगा? एंथर में हम लोग इसमें देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है पोलन ग्रेन। बहुत सारे इंसेक्ट फ्लावर को विजिट करते हैं पोलन ग्रेन के लिए। स्पेशली वी टॉक अबाउट हनी बी। हनी बी पोलन ग्रेन्स इसीलिए खाती है टू मेक अ हनी। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन है वो एक न्यूट्रिटिव चीज है फ्लावर की, जिसकी हेल्प से, हाँ हम लोगों ने ये तो बताया बेटा कि पोलिनेशन का मतलब पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये तो काम है ही, पोलिनेशन का काम तो है ही। अदर देन दैट ये पोलन ग्रेन है वो बहुत ही न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है, तो इसका इस्तेमाल करके हनी बी जो है वो हनी बनाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है हनी।
क्योंकि वो भी एज अ सप्लीमेंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट के फॉर्म में हनी को यूज किया जाता है। तो इनसाइड एंथर पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है और फिलामेंट ये स्ट्रक्चर है जो एंथर को अटैच करके रखती है किसके साथ, तो के फ्लावर के बाकी के पार्ट्स के साथ। तो वी कैन से फिलामेंट का फंक्शन क्या है बेटा, तो कनेक्शन। किसके बीच में कनेक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो के एंथर का फ्लावर्स के पार्ट्स के साथ। सो मेनली फिलामेंट हम ऐसा कह सकते हैं कि इट्स सर्व एज अ जंक्शन। किसके बीच में जंक्शन है बेटा, तो एंथर और ये जो फ्लावर्स के बाकी के पार्ट्स है उसके साथ अटैचमेंट करवाने का फंक्शन दैट इज ऑफ अ फिलामेंट। नाउ देयर इज अ टर्न ऑफ अ सबसे ज्यादा इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड दैट इज गाइनोशियम। लुक स्टूडेंट्स, पहले हम लोग गाइनोशियम का पूरा स्ट्रक्चर्स बना दे जो कि काफी हद से डिफरेंट है फ्रॉम अदर फ्लावर पार्ट्स। At the base there is a presence of ovary, so this is the ovary part. Now this is the stigma. Stigma जिसके साथ connected है that is a tube-like structure and that one is the style. Style open हो रही है into ovary and inside ovary. See my dear students, I will make this part very clear for you. This is the placenta or axial part of a flower जिसके साथ there is a attachment of a ovule like this. So we can say that inside the ovary there is a arrangement of ovules. So this is ovules. Okay my dear students. तो स्टिग्मा हमें ऐसा लग रहा है कि surface of stigma मतलब in every different flowers structures of stigma is a variated one. Here stigma का surface जो है वो थोड़ा rough like structure है, hairy structure है. Why dear students? To receive pollen grain easily. Fine. Stigma का surface is not a smooth one. मे बी रफ हो सकता है, स्टिकी हो सकता है, अलग अलग वेरिएशंस में हो सकता है, बिकॉज उसका मेन काम ये है कि पोलन ग्रेन टू रिसीव करे। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंथर कितना नियर टू स्टिग्मा है उसके बेसिस पर ये वेरी करता है। सो इन एंथर देखो, सी इन एंथर आई शो यू दिस पोलन ग्रेन। व्हेन द एंथर इज गोइंग टू बी मैच्योर, इट इज डिहाइसन, इट इज रप्चर्ड एंड रिलीज पोलन ग्रेन लाइक दिस। ये रिलीज करेगा पोलर ग्रेन इन एयर करंट। सो ये एयर करंट थ्रू या फिर कोई अनदर एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट थ्रू। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में हम ज्यादातर विंड और वाटर को कंसिडर कर रहा है। और इफ यू कैन से बायोटिक फैक्टर, तो बायोटिक फैक्टर में बेटा इंसेक्ट आ सकते हैं, कोई भी लिविंग चीज, जैसे कि इंसेक्ट है, बर्ड है, स्नेक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो इसको उठा के पोलन ग्रेन को उठा के यहाँ पे ला रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द डेफिनेशन ऑफ पोलिनेशन इज वेरी क्लियर फॉर ऑल। पोलिनेशन का मतलब फ्रॉम एंथर से पोलन ग्रेन को यहाँ तक लाना। तो बेटा उसके दो टाइप के एजेंट हो सकते हैं, एबायोटिक भी और बायोटिक भी। एज आई से यू कि एबायोटिक में विंड एंड वाटर है और बायोटिक में इंसेक्ट, बर्ड और स्नेक है। विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोगों ने पोलन ग्रेन को स्टिग्मा की सरफेस पर बिठा दिया है लाइक दिस। सी माय डियर स्टूडेंट्स, गाइनोशियम। तो गाइनोशियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और गाइनोशियम के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों ने कंसिडरेशन किया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिसीव करने वाला पार्ट है दैट इज अ स्टिग्मा। माय डियर स्टूडेंट, स्टिग्मा का सरफेस में भी स्टिकी रफ हो सकता है टू रिसीव पोलन ग्रेन। देन आफ्टर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अ स्टाइल, वो भी सॉलिड हो सकती है या फिर होलो हो सकती है। स्टाइल ओपन हो रहा है ओवरी में, मे बी ओवरी हैव सिंगल चैम्बर्ड, एक ही चैम्बर हो सकता है, सिंगल चैम्बर्ड हो सकती है या फिर मैनी चैम्बर्ड हो सकती है। ओके, एंड ओवरी के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। तो दिस इज द ओव्यूल्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गाइनोशियम का मेनली फंक्शन है, जो पोलन ग्रेन बैठा है वो पोलन ग्रेन में से मेल गैमेट जो है वो मेल गैमेट को ट्रांसफर करके यहाँ तक लाना। फाइन।
तो जो रिसीव करने वाला पोर्शन है पोलन ग्रेन को रिसीव करने वाला पोर्शन है वो स्टिग्मा है। पोलन ग्रेन में से निकलने वाली ये ट्यूब पोलन ट्यूब है, तो पोलन ट्यूब का रास्ता कौन सा है माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ यू कम टू नो स्टाइल। स्टाइल में से पोलन ट्यूब निकलेगा। ओवरी के अंदर क्या है? तो क्योंकि इट इज द हाउस फॉर द ओव्यूल्स, उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स है, और ओव्यूल्स के अंदर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? तो के फीमेल गैमेट है। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट्स है, और दोनों का फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट का फ्यूजन, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है माय डियर स्टूडेंट जाइगोट। इट इज वेरी क्लियर फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमने जो यहाँ पे फ्लावर बनाया है वो हिबिस्कस का फ्लावर है, 4 वर्ल है इसलिए कंप्लीट फ्लावर है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट है इसलिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। कोरोला जो कि कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट है, मतलब पेटल है, बराबर है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है फॉर पोलिनेशन। थर्ड है दैट इज एंड्रोशियम विच इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज अ गाइनोशियम मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स। आई होप सो फ्लावर सबके लिए क्लियर है स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस इज द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टू study further other parts of the flowers and the histology of the flowers. Thank you all.